name is Mohammad Shyam Singh and I am student of Civil Engineering at Mithu University of Science and Technology. And my fellow name is? My name is Mohammad Ishtiyaq Sab and I am in the Civil Engineering department. Sir, our company name is Pro Build the Nation. And this is our company logo. Today our topic is CPEC infrastructure project. CPEC means China-Pakistan Economic Corridor. China-Pakistan Economic Corridor is a project that aims to connect the two nations, China and Pakistan, and boost the economic prosperity and regional integration. Sir, the main role of construction management in CPEC is divided into three types. First one is project planning. Project planning includes feasibility studies, risk assessment and resource allocation. And the second important type is coordination and collaboration. Coordination and collaboration play an important role in construction management. Effective coordination among stakeholders and contractors and regulatory bodies ensure the project delivery and minimize delays. And the third most important point is quality assurance. Robust quality control measures and adherence to international standard. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत फोकस करना पड़ता है और प्रोजेक्ट को हमें अगर जल्दी खत्म करना है तो इसके लिए हमें क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत फोकस करना पड़ता है। आगे Challenges in CPEC infrastructure development. इससे पता चलता है जब CPEC का मनसूबा बना तो उनको कौन से चैलेंजेस दरकार थे। तो इसमें सबसे पहले जियोग्राफिकल obstacles. Regular terrain, high altitudes and harsh climate of the region pose significant engineering and logistical challenges. तो इसमें सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में और चाइना में बड़े बड़े पहाड़, बुलंद ऊंचाइयाँ और नाहमवार सतह की वजह से climate change and harsh climate of the region pose significant engineering and logistical challenges. दूसरा है regulatory hurdles. Navigating the complex regulatory environment and aligning with national and international standards can be a daunting task. दूसरा भी जब भी किसी दो मुल्क के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो इसमें ये बड़ा चैलेंज था। तीसरा स्टेक होल्डर कोऑर्डिनेशन. Effective coordination and cooperating among stakeholders including government agencies, local communities and international partners is crucial. Environmental concerns. Balancing economic development with environmental sustainability is a key consideration in CPEC projects planning and implementation. दूसरा, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सस्टेनेबिलिटी के वो जो 17 रूल हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। Implementing building information modeling, comprehensive data integration, improved visualization, streamlined collaboration, life cycle management. Comprehensive data integration. BEM enable the integration of various data sources including design, construction and operational information for efficient project management. जैसा कि प्रीवियस प्रेजेंटेशन में भी उन्होंने बताया कि जो सा BEM है वो हमें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बहुत सी आसानी कर देता है, तो इसमें भी BEM उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। BEM and point is improved visualization. BEM 3D modeling capability provide enhanced visualization, allowing for better decision making and problem solving during the construction phase. Streamlined collaboration. BIM facilitates seamless collaboration among different stakeholders, enabling real-time information sharing and coordination. Life cycle management. BIM can support the entire life cycle of CPEC projects from design to construction and even facility management. BIM हमें मदद करता है कि वो हमें पहले से 3D मॉडल के ज़रिए हमें बता देता है कि कैसे
वो नज़र आएगा और वो स्टेक होल्डर्स के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, जिसकी वजह से वो देख सकते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट की और क्या इसमें मुश्किलात दरपेश आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर सीपैक। इसमें हमारे पास 4 पॉइंट आ जाते हैं: मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन और कस्टम एंड क्लियरेंस। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं ट्रांसपोर्ट कि हमने कैसे कार्गो और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है। इसमें हमारे पास रोड आ जाती हैं, रेल आ जाती है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट आ जाती है टू इंश्योर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड मटेरियल। सेकंड हमारे पास आ जाता है वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेयर हाउस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड होते हैं उन जगहों पर जहाँ पर हमें एक जगह से दूसरी जगह लंबा फासला तय करना पड़ता है। वहाँ पर हमें बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जाते हैं जहाँ पे हम सामान को स्टोर कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सी पैक के रिलेटेड कार्गो को। तीसरा पॉइंट आ जाता है सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी चैन को मैनेज करना, उसके लिए डाटा एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है ताकि ये प्रोसेस स्मूथली हो सके और मिनिमाइज डिले ला सकें इसके अंदर। कस्टम एंड क्लियरेंस आ जाती है क्योंकि ये दो मुल्कों के दरमियान हो रहा है ट्रेड, तो इसलिए वहाँ पर कस्टम एंड क्लियरेंस का बहुत बड़ा इशू आता है। इसको मैनेज करने के लिए आगे से आ जाता है सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसिडरेशन इन सी पैक। हमारे पास जो एनर्जी और एनवायरनमेंट को लेकर जो हमारे पास से कंसर्न आते हैं उनमें एनर्जी एफिशिएंसी और वेस्ट मैनेजमेंट और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन आता है। हमारे पास वर्क फोर्स की बहुत कमी है, स्किल गैप है। इसके लिए हमें चाहिए कि नॉलेज ट्रांसफ़र किया जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग का इंतजाम किया जाए और स्किल गैप को कम किया जाए ताकि हम एक हुनरमंद अफराधी कूद को पैदा कर सकें। मॉनिटरिंग एंड एवेलुएशन ऑफ सी पैक प्रोजेक्ट्स, ये सबसे अहम पॉइंट है आज की स्लाइड का। और बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पे बेस है, इसमें हमें बताया जाता है कि आप कैसे परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और प्रोजेक्ट्स के आगे ताकि एक करप्शन फ्री ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाता है। इसमें हमें बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और मुख्तलिफ तरह की हमारे पास मैनेजमेंट है उसको यूज़ करके कैसे हम एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक स्किल वर्क फोर्स पैदा कर सकते हैं और मुख्तलिफ कठिन हालात से हम मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। फीडबैक स्लाइड्स को ठीक है, डिलीवरी में थोड़ा सा है थ्रू आउट फीडबैक देखना और आई कांटेक्ट ठीक है। सो मोड ऑफ द लेक्चर I think they delivered in Urdu, so there was a kind of language barrier in it. So Yes, sir. but English is just a language, so the message should be conveyed in a way. So if they are speaking Urdu, so there should be they should have a prompt. हाँ वो ये कहना चाह रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये मैंने बताया था उर्दू में नहीं आपने इंग्लिश में ही देनी है, लेकिन अगर वो आप उर्दू में दें तो जैसे जो आपसे पहला एक ग्रुप था वो एक इंगेज कर रहा था। जैसे मैं अगर आप दोनों को सेपरेट करूं, आपने वीडियो में देखा आपके हाथ थ्रू आउट ना ये रहे हैं। आपने देखना है वीडियो में, आपने हमें तो देखी कोई नहीं, आपने कंटिन्यूसली उसको देखा है। आप लोगों का वो जो होता है ना इसको बोलते हैं इंटोनेशन, हाइज एंड लोज आवाज में। देखें इवन मौसीकी होती है ना, मौसीकी ठीक है, कोई भी शायरी है उसको राहत के लिए हान कैसे उठाता है, अगर आप उसमें से वो हाइज एंड लोज निकालें तो चाह सकता है हान बन जाता है। टू एग्जांपल है ना, बात तो वही है ना, बात तो सही है। तो सारी तो आपने इंगेज वो ये पॉइंट बताना चाह रहे हैं कि
कोई नहीं किया। आगे सर जी जी बताएं ना। सर जो कॉन्टैक्ट इन्होंने प्रोवाइड किया वो अच्छा था, लेकिन हाँ। ये ज़्यादातर कह सकते हैं आपकी एक्सप्लेन करने के बजाय ज़्यादातर रीडिंग ही की है। उसके अलावा हाँ प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी क्योंकि इन्होंने ये जनरेटिव पिक्चर्स या दूसरी पिक्चर्स भी प्रोवाइड की थी। और उसके अलावा बीच में हमने जो कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज वो कुछ की है, स्विच की है, एक ही में अगर हो जाती तो ज़्यादा नहीं होनी ही इंग्लिश में है, ठीक है। ये एक अच्छी बात है कि आपके पॉइंट जो मेरे पॉइंट से मिले हैं। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है ट्रांसलेट। आप वहाँ से पढ़ रहे हो फिर उसको उर्दू में बता रहे हो, फिर पढ़ रहे हो फिर उर्दू में बता रहे हो। और नॉट इंगेजिंग, मोनोटोनस टोन, ठीक है। नॉट इवन लुकिंग रेफरेंसेस एंड पे नहीं थे, एक मैंने ये देखा है। और जो आपने एक बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेकिन मैं वो लगा उससे बताया नहीं आपने। अच्छा हाँ जी, अब ज्यूरी जो भी सही हाँ तो सेम पॉइंट है सर। ये था। सेम पॉइंट है। बाकी कंक्लूजन में पिक्चर जहाज जा रहा था। जहाज था ना? वो सर वो कार्गो जहाज पा रहे थे। बट सर दे ट्राइड ओवरऑल ये अच्छा प्रेजेंटेशन। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि याद आई अगर ये प्रेजेंटेशन मिसाल के तौर पे आज से अगले वीक में होती ना तो ये फेल हो जाती। बट ये पास थी, यस आराम से पास हुए हैं आप, ठीक है। हम इधर लर्निंग जितनी बातें हैं ना ये सब के लिए लर्निंग है। हैंड्स की मूवमेंट ऑडियंस को एंगेज रखनी, ठीक है। इंग्लिश में दें वो थोड़े स्क्रीन को यार हमें देखिए ना, ठीक है। तो देखिए कितनी लर्निंग हुई है। अब करना क्या है आपने अपने ना एक रजिस्टर कैड पे ना लिख लेना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स लर्निंग। रोज के आपने जो लर्निंग सीखते हैं ना बुलेट पॉइंट्स में ना छोटी छोटी बातें लिख लें। बिलीव इस सेमेस्टर के बाद आपके 40 to 50 पॉइंट्स हर बंदे के होंगे। आप किसी इंटरव्यू में जाएं, जॉब के लिए जाएं, कहीं पे जाएं, फॉरेन पढ़ने के लिए जाएं, आप अपने 40 to 50 पॉइंट्स रिपीट कर लें। आपकी हर चीज जबरदस्त हो जाएगी, आपकी फ्यूचर की हर प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। क्योंकि ये वो गलतियां होंगी जो सब का निचोड़ होगा, ठीक है। तो ये चीज मैं कभी भी देख सकता हूँ किसी भी स्टूडेंट को बुला के। मुझे ये नहीं कहना दूसरे रजिस्टर में है, कभी भी मैं कह सकता हूँ हाँ अपना रजिस्टर दिखाएं, मैं पढ़ूंगा नहीं डेप्थ में। क्योंकि आपने लिखी है जैसे लिखे हैं, एक नजर डाल दो कि आप इसमें जो लर्निंग मिली है वो अभी तक है, शाम तक है, कल तक थोड़ी वीक हो जाएगी, एक हफ्ते बाद लाइव ज़हन में नहीं लेगा कि जैसे प्रोजेक्टर की स्क्रीन को क्रॉस नहीं करना बार बार। तो ये अमल बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वीक के जो बंदे हैं आइंदा के लिए, आइंदा खुदा के लिए ग्रुप में ये इस तरह ना करेंगे, ठीक है। दिस फाइनल है ना, बस अब उसमें आप लोगों को कुछ कह देना।